السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں آج فرقے کے تعلق سے ایک بات کروں گا۔ یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہر فرقے میں وہ اپنا ایک پرسنل عمل کرواتے ہیں اپنی عوام کو، جس کی وجہ سے وہ دوسرے فرقے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مسلمان عوام کے اندر کچھ چیزیں ہیں، کچھ عمل ہے جو ہر ایک کرتا ہے اور اس کے وجہ سے یونٹی برقرار رہتے ہیں، جیسے کہ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے اور سال میں 2 بار عید اور وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت سارے عمل ہیں جس کے وجہ سے سارے مسلمان یونٹی میں ہے ایسا لگتا ہے۔ اس کے اندر سے کچھ ایسے عمل ہے جس کے وجہ سے ہر ایک فرقے ایک خاص اور الگ انٹرپریٹیشن بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے فرقے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ میں تھوڑا اگزامپل دے کے بتاؤں گا، جیسے کہ شیعہ حضرات میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ماتم منایا جاتا ہے۔ جو یہ ایکسٹرا آرڈینری عمل کرتے ہیں نا، وہ یہ سنی سے ان لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ماتم کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ اہل البیت سے پیار کرنا، اہل البیت جو امت نے بیرا کیا ہے اس کے لیے دکھی ہونا یہ اچھی بات ہے۔ ان کے لیے دل میں پیار رکھنا، ان کی باتوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکال آنا، یہ صحیح ہے اور یہی صحیح ہے، کیونکہ ان کے غموں میں ہم ماتم کر کے اپنی پیٹھوں پہ چاقو مارنا، چھورا مارنا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو شیعہ حضرات یہ عمل کرتے ہیں اور سنی حضرات سے الگ ہو جاتے ہیں، اور جو یہ عمل نہیں کر رہے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ یہ اہل البیت کا دشمن۔ یہ ایکسٹرا آرڈینری عمل جو وہ لوگ کرتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ ویسے سنی میں آئے تو سنی کا جو گروپ ہے ان میں بھی کافی سارے الگ الگ عمل ملتا ہے، جیسے کہ اگر ہم بریلوی حضرات کے پاس جائیں گے تو وہ جتنے عمل کریں گے، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ از فائن۔ اس کے بعد وہ زور دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں اور میلاد النبی میں۔ یہ ہوتا ہے ان کا اصلی اور اسپیسیفک عمل، جو عام مسلمان گروپ میں نہیں پایا جاتا، ہوتا ہے بٹ ایسے زوردار نہیں ہوتا، دکھاوا ایسا نہیں ہوتا۔ اور وہ بولتے ہیں کہ جو نبی سے پیار نہیں کرتا وہ نبی کا دشمن، اور باقی سب کو وہ وہابی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، جیسے کہ دیوبندی ہو، اہل الحدیث ہو۔ تو یہ اسپیسیفک عمل ان کو باقیوں سے الگ کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ جتنا ضروری بتاتے ہیں کہ میلاد النبی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نعت شریف پڑھنا ہے، یہ سب اگر کوئی مسلمان نہ بھی کرے تو بھی ایک کہیں پہ بھی ایسا نہیں ٹھہرا پائیں گے کہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ نبی کا دشمن نہیں۔ سب لوگ نبی کا ہے، کیونکہ نبی کا حکم سب میں کچھ نہ کچھ تو پائے جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھے تو ایسے ہی پڑھ رہے کیا؟ نہیں نا۔ آؤ بریلوی سے ہٹ کے اگر اب دیوبندی حضرات کے پاس آؤ گے تو یہ ملے گا کہ ان لوگوں کو تبلیغ جماعت ہے۔ تبلیغ جماعت ایک اچھی ترتیب ہے لوگوں کو سدھارنے کے لیے۔ جس کو کلمہ بھی نہیں آتا، جس کو سورۃ الفاتحہ بھی نہیں آتا،
जिसको नमाज का नहीं पता, वज़ू का नहीं पता, गुस्ल कैसे करना है, पेशाब पैखाना कैसे करना है, वो सब नहीं पता, वो लोग शुरू से सिखाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बट ये चिल्ला लगाना, चिल्ला से मुराद वो क्या क्या फजीलत निकालते हैं कि हज के बराबर होता है। जो लोग मतलब हज नहीं जा पाते इधर चिल्ला लगाते हैं। ये थोड़ा थिंकिंग रखना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि बाकी सब तो ये नहीं मान रहे हैं। ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वजह से ये देवबंदी फ़िरका अलग हो रहा है। तो ये हो गए फ़िरके की बात। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक भी नहीं है। कैसे? देखो क्या गलत हुआ है कि सारे फ़िरके कुछ ना कुछ तो लेके चल रहे हैं ना। जो फ़िरका जो भी चीज़ लेके चल रहे हैं उसको कोई डायरेक्टली गलत भी नहीं बोल पाएंगे। कोई हजरत आके बेरलवी को डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे कि आप नबी के मोहब्बत क्यों रखते हो, मिलादुन नबी क्यों मनाते हो। तो डायरेक्ट बोलेंगे नबी का मोहब्बत नहीं रखेंगे तो किसके मोहब्बत रखेंगे। तो आप कैसे गलत बोलोगे। मिलादुन नबी जो करते हैं आप कैसे बोलोगे कि मिलादुन नबी आप नहीं कर पाएंगे, नहीं करो, मत करो। वो बोलेंगे कि मोहब्बत रसूल तो वो जो मिलादुन नबी करता हो। तो आप क्या बोलेंगे, आगे से कुछ नहीं बोल पाएंगे। जमात में तबलीग जमात के बारे में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कि तबलीग जमात बहुत सारे लोगों को दीन पर लाने का ज़रिया बना, और ये सही भी है। बहुत सारे दुनिया भर में बहुत सारे लोग जो दीन से गायब थे, वो लोग दुनियावी काम में मशरूफ़ थे, ऐसे ही जमात में चले गए और वो सुधर गए। और ये बात सही है कि एक बंदा 40 दिन जब घर से बाहर एक मस्जिद में पड़ा रहता है, उसका दिल जो रुका रहता था ना कामों में, वहाँ से हट के दीन की तरफ आता है। ये बहुत अच्छी तरतीब है, क्योंकि एक बंदा जो रोज़ सोच रहा है कि मैं सुधर जाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन नहीं हो पा रहे उसके रोज़ की ज़िंदगी की वजह से। जब ये बंदा हट के 30-40 दिन के लिए अपनी घर के वो काम से हट के थोड़ा अलग काम कर लेते हैं ना, कुछ हदीसें सुन लेते हैं, कुछ नमाज का तरतीब आ जाता है, तब एक चेंज आता है, उसके पहले नहीं आता। तो कैसे गलत बोलेंगे। गलत ये है कि आप मेन स्ट्रीम पर रहो। जैसे कि दीन का मेन स्ट्रीम क्या है, कुरान और सही हदीस। आप जहाँ पर भी हो, चाहे तबलीग जमात पे हो या फिर मिलादुन नबी मना रहे हो, बेरलवी हो, आप कुरान का डायरेक्ट तर्जुमा पढ़ो। चाहे आप आलिम हो, चाहे आप अवामुन नास हो, कुरान का डायरेक्ट तर्जुमा पढ़ो। हदीस जो कुरान के बाद अव्वल हदीस है वो है, अफजल हदीस कौन सा है, बुखारी शरीफ, उसके बाद मुस्लिम शरीफ, फिर कुतुब सित्ता की बाकी हदीस को, जिस हदीस की बुक आपको पसंद है वो पढ़ो। पहले बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पढ़ो, क्योंकि यहाँ ये दो हदीस की किताब पढ़ने के लिए आपको कोई आलिम की ज़रूरत नहीं होगा। जो तर्जुमा वाला हदीस है ये पूरा सही है, क्योंकि बहुत सारे आलिम इस दो किताब के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करके इन दोनों किताब में जितने भी हदीस आए हैं वो सही करार दिए हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ पे कोई ज़ईफ़ हदीस, कोई मौजू हदीस, ऐसा हदीस है। जो नंबरिंग होता है ना, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो नंबरिंग से हदीस आया है वो सारे के सारे सही है। तो आपको बिना शुबा, बिना शक के, किसी आलिम के बगैर भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको सही दीन का मालूम होगा। तो आप जमात पे जाइए, जहाँ पर भी जाइए, आप कुरान और हदीस को पढ़िए, तो आप सही रास्ते पर अपने आप निकल के आ जाएंगे। वैसे भी
मेरे ख्याल से अगर सब लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट के आएंगे तो चाहे वो अलग हो, चाहे बिरलवी देवबंदी अलग अलग से रहे हो, फिर भी एक समझौता आएगा, एक यूनिटी आएंगे। क्योंकि अगर कोई आलिम, एक बिरलवी आलिम बिरलवी आवाम को कहाँ पे खींचेंगे? बिरलवियत की तरफ खींचेंगे। एक देवबंदी आलिम कहाँ खींचेंगे? देवबंदियत की तरफ खींचेंगे। और एक शिया आलिम शिया की तरफ खींचेंगे। एक अहलुल हदीस आलिम वो अहलुल हदीस की तरफ खींचेंगे। तो सारे के सारे तो खींच रहे, लेकिन सब बोलेंगे कि हम नबी के फॉलोअर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही बात है वो किधर है? हदीस में। और हदीस में ऐसा आता है कि अल्लाह का कलाम सबसे बेहतरीन कलाम है, तो वो किताबुल्लाह की शक्ल में आ गया कुरान शरीफ। तो आप बेहतरीन कलाम पढ़ो, उसमें जो भी कहा गया है आँख बंद करके मानो। समझ में आए समझ में नहीं आए आँख बंद करके मानो। चाहे आपके आलिम जो भी कहे, आलिम को साथ रब्ता करके कि आलिम साहब कुरान की इस आयत में ऐसा कह रहा है, मैं क्या करूं? वो आलिम मजबूर होकर बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आलिम के सामने एक बार आयत लेके जाओगे तो आलिम तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात आया हदीस को के उसके बाद बेहतरीन कलाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये दो तो आप बिना आलिम के पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आलिम ने ये पूरा सही करार दिया है। ये 100% श्योर है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह की ज़बानी है या फिर उनकी अमल है। तो ये दो हदीस की किताब अगर पढ़ोगे, अगर सब लोग पढ़ेंगे तो इंसानियत तो आ ही जाएंगे ना। हमारा टारगेट है कि सारे फ़िरके झगड़ा बंद करो और इंसानियत पे आओ। कम से कम ये अंडरस्टैंडिंग रहे कि दूसरे जो हमारे ग्रुप है मुसलमान में, उसमें भी जन्नती है। और ये बात सही है कि हर एक ग्रुप से जन्नती निकलेगा, चाहे उनमें गलतियाँ हो, चाहे दोज़ख में भी जाएंगे, क्योंकि शिरक भी करेंगे बहुत सारे लोग। शिरक के अमल को लेके जब कोई बंदा मैदान हशर में जाएंगे तो वो शिरक तो माफ़ नहीं होगा, उसके लिए दोज़ख जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कलीमा है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उनके जब सज़ा हो जाएगा तब अल्लाह ताला उनको उठा के लेके आके जन्नत में देंगे। ये है कलीमा का पावर, ठीक है। और तो हर कोई जन्नती है, जो भी ये पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो एक नए दिन का जन्नती होगा। चाहे वो दोज़ख में जाना पड़े कुछ साल के लिए, कुछ हज़ार साल के लिए, वो अलग बात है। तो हम अगर सब लोग मुसलमान जन्नती है तो झगड़ा बंद करें, एक दूसरे को गले लगाए, सलाम कीजिए बस। और जो गलती कर रहे हैं उनको अच्छे से एहतराम से बोलिए कि भाई, मेरे मुसलमान भाई, आप चाहे जो भी हो, जो भी फ़िरके से हो, आपका ये गलती है मेरे नज़दीक। आप एक बार सोच के देखिए या फिर थोड़ा पढ़ के देखिए, फिर अगर आपको भी लगे तो आप सुधर जाइए। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा मुसलमान के लिए। इससे ज़्यादा नहीं चलेगा कि तुम फला हो गए, गुस्ताख रसूल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, गाली देना, नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इतना ही बोल पाएंगे कि भाई, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि तुम नबी के मानने वाले हो, मैं भी नबी के मानने वाला हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक, मेरे हिसाब से तुम्हारे अमल में या फिर तुम्हारे अक़ीदा में ये थोड़ा गलती है, जो ये सही है। तो आप मेरे हिसाब से आप थोड़ा पढ़ो, थोड़ा राब्ता करो, उसके बाद सुधर जाओ। बस ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर नहीं भी सुधरो फिर भी मैं तुम्हें गले लगा लूँगा, ये बोलना चाहिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए। तो आइंदा झगड़ा ना कीजिए, इकट्ठे रहिए, मिलजुल के रहिए, और यही सही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।